हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डिस्कस फिश एक्वा किंग। आज हम लोग हैं आत्मश के यहाँ पर और यहाँ पे हम इनके एक्जॉटिक फ़िश को कवर करने के लिए आए हुए हैं। तो उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके पास जो डिफरेंट वैरायटीज़ है उनके स्टॉक के बारे में देखेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस। हाय, माय नेम इज़ आत्मज। तो ये मेरा बेसिकली शॉप है विच इज़ लोकेटेड ऑन द टेरेस ऑफ माई बिल्डिंग एंड इट्स इन थाने, जस्ट नियर टू द स्टेशन, रेलवे स्टेशन, और इवन रोडवेज इट्स क्लोज बाय. So I am into this hobby from 2015 around, where I started keeping fish. My first fish was betta fish. So after that I was very fond of keeping imported or exotic variety, which I used to struggle getting these fishes nearby, like around. So then I thought that I should only get into this hobby as an seller, so that I can provide people good fishes which they are not able to find really close by. So now I am into hobby for around 5 years. So abhi now I sell fishes. I keep different type of exotic fishes. Like most of the fishes which I am having are discus, arwana, kois, and then in exotic if you go ramirezis, if you go geophagus, heckleys and everything. So now presently I am having varieties which you can see are cichlids, which are African cichlids, Malawi cichlids, South American cichlids as well. I have oscars. And then other things which I am having is orandas, which are red cap orandas. Then I have electric blue ramirezis, and then other fishes which I am having are koi angels, which are common normally hardy fish. And then I am having plantation varieties which are tetras, basically harlequin tetra, cardinal tetra, neon tetra, which are very good for nano setups. And then other fishes I am having are dwarf platies, which are rare to find. And other guppies which I am having are metal blue guppies, which are very rare to find, you won't find them. Then Moscow, Dumbo ears, and other plants as well I am having. So this is what right now I am having the stock. So now we are at discuss fish tank. So he will just let us know basic terms and basic parameters for water and what we actually require to keeping a discus. So please help us what we actually need. Yeah, so discus is kind of fish which is kind of you can say delicate but a unique and beautiful fish. But then many people struggle keeping discus. The reason is that they are very quite honestly very sticky to their parameters of water. So अगर पानी का थोड़ा भी fluctuation होता है, they try to get numb or you can say take the corner and sit or get stressed easily. तो अभी ये क्या है ना, दिस डिस्कस आई एम बीन कीपिंग विद, दे आर विथ मी फॉर अबाउट 4 to 5 months एंड नाउ दे आर फिट इनफ, दे आर सेट. क्योंकि क्या है, नाउ मोस्ट ऑफ द डिस्कस आर फेड ऑन यू कैन से लाइव फूड to make them good. But now my discus are only feeding on tetrabits, so I have converted them to tetrabits and you can see the colors are fine. And also I am not keeping them in the heater or something, so they are okay with the room temperature set, you can say the fishes are set. So only for keeping discus you have to keep that in mind that it will take time to set. So once the fish is set, that is fine, like it goes around for longer time, no problem with discus. So please let us know if a beginner want to start with the discus. Okay. So what exactly he wants to do with that, because as you just said that it is very hardy fish. Yeah. And it is very difficult to keep. So if a new hobbyist want to introduce or start with the discus, so what he actually need and how he can take care about the discus. So if the guy is new, like if he wants to keep discus for the first time, the first important thing you can go is, most of the even expert guys say that वो छोटे साइज से मत स्टार्ट करो, डोंट स्टार्ट विथ 2 inches 3 inches, बिकॉज इवेंचुअली दे विल स्टार्ट गेटिंग सिक, देन यू विल गेट फेड अप ऑफ डिस्कस, फिर आपको डिस्कस एक टेंशन लगने लगेगा. तो डोंट गो फॉर दैट, गो फॉर दिस साइज, मे बी यू कैन से 4 inches 3 to 4 inches. ये साइज में दे ऑल्सो शो द कलर वॉट दे विल बी, और सेट हो जाता है ये साइज में. तो यू इफ़ यू आर अ स्टार्टर, आई एम सेइंग यू कैन गो फॉर 3 to 4 inches ऑफ साइज, और फिर तब से आप रखना चालू कर सकते हो. एंड फॉर न्यू बिगिनर रिमेंबर दिस थिंग दैट हीटर इज समथिंग विच यू विल हैव टू कंसिडर इन माइंड. अगर आप पहली बार रख रहे हो, हीटर इज समथिंग विच विल हेल्प यू टू सेट द फिश फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ योर फिश कीपिंग. उसके बाद में इवन दो इफ़ यू डोंट यूज योर हीटर इज फाइन, लाइक नॉर्मली फिशेस सेट हो जाती है. वी आर ऑन द इक्वेटोरियल थिंग, तो टेम्परेचर अपना है विच इज़ ओके विद द डिस्कस. सो डिस्कस
न्यू बिगनर आई वुड सजेस्ट ओनली साइज थिंग, बाकी का इंटीरियर में यू डोंट गो फॉर एनीथिंग, कीप अ ब्लैंक बेयर बॉटम टैंक और अ ड्रिफ्टवुड इन इट विच विल हेल्प टू मेंटेन द पीएच. तो पीएच डिस्कस को कम लगता है. पीएच इज समथिंग यू कैन से दैट जो चीज़ एसिडिक नहीं होनी चाहिए, तो लोअर द पीएच बेटर इज़ द डिस्कस. तो पीएच लोअर करने के लिए ड्रिफ्टवुड इज़ द बेस्ट थिंग. तो एक ड्रिफ्टवुड रखो एंड ब्लैंक बेयर बॉटम इज़ फाइन. एंड फीडिंग, ट्राई टू फीड देम फ्रिक्वेंटली बट देन डोंट ओवर फीड देम. कोई भी फिशेस को ओवर फीड मत करो. लेट देम स्टार्व, लेट देम गेट अ नेचुरल फीलिंग और फिर वो सेट हो जाते हैं. देर इज़ नो प्रॉब्लम इन सेटिंग द डिस्कस. सो गाइस, हम लोग ने आत्मज से बात की, उनके बारे में, उनकी फ़िश को देखा और उनसे इन्फॉर्मेशन भी ली कि इफ़ यू वांट टू कीप द डिस्कस, सो इट इज़ नॉट अ वेरी हार्ड थिंग्स टू कीप, बट आपको बेसिक पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है और आप इजी टू कीप कर सकते हैं. इनके डिस्कस के वैरायटीज़ को हमने देखा जो कि हमको बहुत ही ब्यूटीफुल लगे और होप भी हम लोग इसमें से 1 या 2 पीस हमारे स्टॉक के लिए भी बाय करेंगे और इनके और एक्जोटिक फ़िश भी हम लोग कवर करेंगे. तो आइए वो भी देखते हैं हम लोग. सो दिस आर माई फ्लावरॉन्स जो मेरे पास अभी अवेलेबल है, लाइक द स्मॉलर साइज़. नाउ डेज इफ़ यू सी पीपल को छोटे साइज़ रखना बहुत पसंद है बिकॉज दे लाइव टू ग्रूम देयर ओन फिश. उनको चाहिए रहता है कि दे सी देयर फिश ग्रो. तो देन इसलिए मैंने नॉर्मली आई ब्रिंग स्मॉल साइज़ अबाउट 2 इंचेस का फ्लावरॉन आता हूँ एंड देन आई ग्रूम देम, make their head pops. If you see now the fishes, their heads are kind of pop. So now this is the age or size जब से head pop होना चालू हो जाते हैं. So now they will grow around, उनका head अभी pop होगा according to the temperature of water which I keep or the food which I give. So अगर नया बंदा है, if he wants to keep the flower-on, remember one thing that flower-on भी is an very hardy fish, but then only first 1 week you have to take care of it. पहले 1 वीक में यू ट्राई टू यूज़ द हीटर, दैट्स इट. उसके बाद में यू लीव हिम, गिव हिम अ स्पेस. अगर ये साइज़ है, इफ़ यू आर बाइंग फॉर अ 4 इंचेस ऑफ फ्लावर ऑन, इफ़ यू आर बाइंग फ्रॉम अ गुड ब्रीडर और एन सप्लायर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. यू डायरेक्टली कीप विदाउट डूइंग क्वारंटाइन और डीवर्मिंग और समथिंग, वो ऑलरेडी करके रखते हैं. बट देन इफ़ यू आर बाइंग फ्रॉम समवन हु डोंट नो द फ्लावर ऑन, तो वो डीवर्मिंग वगैरह नहीं करेगा. इवेंचुअली जब फ्लावर ऑन आपके पास आएगा, हिल गेट एन बिग ब्लॉट, उसका पेट फूल जाएगा और एल्स वो क्रंच्ड हो जाएगा और स्ट्रेस में आ जाएगा. तो इट्स बेटर यू टेक फ्लावर ऑन फ्रॉम समवन जो ऑलरेडी सेट करके रखता है. हिज हेड्स आर पॉपिंग, मतलब साइंस दिख रहे हैं कि उसका हेड आएगा. And there are many type of flower on. So now which I am having variety, you can see the sky blue one is in Thai silk. उसको कोई पैटर्न नहीं आएगा. He will be kind of a shiny Thai silk, same like blue diamond in discus. और ये है which is cross pearls, मतलब उसके पूरे बॉडी पे पर्ल आएगा. इवन द हेड विल बी नॉट ब्लैंक, इट वुड बी हैविंग कर्ल्स और उसका रेड कलर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द एज एंड फीडिंग व्हाट वी गिव. So these two are the pieces which I am having right now. और set pieces है, they don't need heater or something. Heater पहले 1 week, as I told, first 1 week use करो and then they are all set. Yeah, so the fishes which I am having now और मेरा stock normally आते रहता है, like it is not a specific date or something जहाँ पे आता है, but then once I think the stock is finished, but I go for only exotic things. Try करता हूँ मैं कि rare आ जाए because I know people love rare fishes now. तो अभी आई एम गेटिंग थाई सिल्क और मेरे कामफाज कुछ आने वाले हैं. इफ़ यू सी देर आर 3 to 4 इंचेस सेम साइज़ के कामफाज आने वाले हैं. एंड इन डिस्कस आई एम गेटिंग स्क्रिबल्स इन मे बी 2 weeks, क्योंकि आई एम गिविंग द पर्सन अ टाइम टू कन्वर्ट देम इनटू टेट्राबिट्स बिकॉज आई डोंट फीड एनी ऑफ माई फिश लाइव फिशेस. तो आई गिव द टाइम टू द पर्सन फ्रॉम और अ डीलर फ्रॉम विच आई एम बाइंग के कन्वर्ट देम इनटू अ ड्राई फूड और टेट्राबिट्स. इवन द फिशेस, अदर फिशेस, नॉट ओनली डिस्कस, दूसरे फिशेस भी आई गिव द डीलर टाइम ऑफ 1 week टू कन्वर्ट देम इनटू ड्राई फिश एंड देन आई टेक देम from him or her and then the stock is available. So most of the stocks which I am having is discus, arvanas, kois, red cap orandas, ramirezis are something which you don't find often. So ramirezis I have 4 to 5 types, and then you said cichlids, parrots and flower horns and oscars. These are the main fishes which I normally keep, and then these are the fishes which people search for nowadays, and quality search where you can find in AT Aquatics, which is located in Thane.
ओके गाइस, सो फाइनली हमने इसमें से 2 फिश बाय किया है। उनका स्टॉक हमें बहुत पसंद आया। आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो और इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो इनके स्टॉक के लिए, और इसको हम अपने टाइम में इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका भी अपडेटेड वीडियो आपको देंगे। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर बी शेयरिंग गुड इन्फॉर्मेशन विद अस। सो स्टे ट्यून्ड विद डिस्कस फिश एक्वा किंग। बाय फॉर नाउ। सो ये टैंक है जिसमें हम लोग ये फ़िश को ऐड करेंगे, जो हमने आत्मश के यहाँ से बाय किया है। ये दोनों फ़िश को इस टैंक में ट्रांसफ़र करेंगे और आपको उसका प्रोसेस भी बताएंगे। सो फ़िश ट्रांसफ़र करने से पहले हमको 30% वाटर को निकालना होता है और फ्रेश वाटर ऐड करना होता है। तो हम लोग पहले टैंक को साइफन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें फ्रेश वाटर फिल करेंगे। अब हमने इसमें वाटर फिल कर लिया है। अब इसमें हम फ़िश ऐड करेंगे।